Good evening, everyone. A very warm welcome to today's book reading session. But before starting our session, as usual, we will do a short meditation. So sit back comfortably, take a deep breath in, feel the miracles in your life. Remember, all the time, whenever you thought about any situation that this is impossible will be resolved. And then some miracles happened. You felt a lot of strength inside. You felt sudden help and support. These unexpected support, help, and blessings are all God's way to give you a message that this situation, this suffering is temporary. And this came to teach you some important lessons in your life. These are not for punishment, a lesson that you need to learn. These are for your own protection. This is God's will to protect you from future happiness. This is the preparation phase. Just like a butterfly becomes a butterfly with certain struggle after passing through certain stages, but it finally blooms, spreads its wings, and flies. So as you, these situations are your stages of development. They may not seem as development for you, but God can see the bigger picture. So trust God, trust the divine powers, and trust your blessings. I can These teach you how to 13 code in. miracles that can come and help you every time. Be grateful and keep learning. Just remember that this phase shall pass. Be strong. Remember your powers. Remember the spark, the light inside you that shines bright and shows the way forward. Affirm all is in my life. Everything is happening for my benefit. I trust the divine powers. Om Shanti. Thank you. Am I audible? Am I audible?
Yes, you are audible. Thank you. Let me share the screen now, and then we will proceed to reading. We're reading chapter 6, Anatomy of Chance. We discussed many concepts like body luck, vital resonance, and many more during this journey. And today we will start reading from God Pausing Breath. Is the screen visible? Yes, it's visible. Can you just zoom out a bit? Is it fine? Zoom in थोड़ा और. हाँ, it's fine now. God Pausing Breath. The only way to truly understand body love is to follow a nirvanic lifestyle. By maintaining such a routine, your life will gradually become more stable and free from trouble, assuming there are no underlying health conditions. In this stable situation, if you attempt to introduce unhealthy foods or adopt harmful lifestyle practices, you will begin to notice adverse events unfolding in your life. These experiences serve as valuable feedback, helping you recognize what is beneficial and what is harmful for your body. Through this process, you gain a deeper awareness of how lifestyle directly influences the events and situations in your life. तो यहाँ गॉड ने पहले बोला कि बॉडी लक को अगर हमें एकदम अच्छे से समझना है तो पहले निर्वाणिक लाइफस्टाइल को फॉलो करना होगा। इसके लिए बहुत सारे होमवर्क शेयर किए गए हैं जो कि पोस्ट थे, कुछ लिस्ट थी इसी बुक में दी गई, जिनमें चीजें लिखी थी कि क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अगर हम निर्वाणिक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं, उस हिसाब से हम रूटीन अपना बनाते हैं, हेल्दी खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और भी सारी पॉजिटिव चीजें करते हैं जो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। ऐसा करने से क्या होगा, धीरे धीरे हमारी सिचुएशन स्टेबल हो जाएगी। अब इस स्टेबल सिचुएशन में अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अनहेल्दी खाने का, ऐसा कुछ जो कि आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, तो आप अपनी लाइफ में एडवर्स इवेंट्स को नोटिस करेंगे। अब इसको अगर हम लोग पहले से कनेक्ट करें तो जो हमारा फूड है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो, और जो हमारी लाइफ में ऑपरेंसेस होती है, ये दोनों ही चीजें कनेक्टेड है। जैसे पहले एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर आप हेल्दी बेनिफिशियल चीजें खाएंगे, उस हिसाब से लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो पॉजिटिव इवेंट्स अकर होंगे लाइफ में। और अगर आप हार्मफुल चीजों को कंज्यूम करेंगे, अगर रात रात तक जागेंगे, लेट नाइट स्क्रोलिंग करेंगे, कुछ एडिक्शन कर लेंगे, तो उससे फिर नेगेटिव इवेंट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे गॉड ने क्या बोला कि पहले आप हेल्दी रूटीन फॉलो करेंगे, निर्वाणिक लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, तो सिचुएशन स्टेबल होती हुई नजर आएगी। और इसमें ही अगर एक्सपेरिमेंट करके कुछ अनहेल्दी किया जाए तो हमें क्विकली महसूस होगा, हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे नेगेटिव इवेंट्स। तो इस तरह से ही इनका कनेक्शन पता चलता है। ईशान, speaking with confidence, I get it, God. Observation is the only way to understand this science. God, with a loving smile. When humanity adopts a nirvanic lifestyle through a balanced diet, discipline, and spell healing, radical technologies will begin to emerge, making today's technological advancements seem primitive by comparison. Spell transcription, which we have yet to discuss, is a powerful technique capable of transforming the human race technologically.
Currently, I am withholding the discovery and widespread adoption of advanced technologies such as truly clean and limitless fuels or radical food growing technologies because they will prevent large scale ecological damage and significantly improve the life. Unfortunately, the current state of the population's health does not permit their emergence. Only when the collective body improves can these breakthroughs be achieved. यहाँ पे कलेक्टिव बॉडी लक की बात हो रही है कि जब एक पॉपुलेशन में अधिकतर लोग निर्वाणिक लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं, बैलेंस डाइट, डिसिप्लिन लिविंग और स्पेल हीलिंग और स्पेल ट्रांसक्रिप्शन ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम लोग फॉलोइंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, पर ये भी अभी तक जितना गॉड ने बताया बहुत पावरफुल टेक्निक है जो कि हमारी हीलिंग के लिए, हमारे बॉडी लक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जब एक कलेक्टिव बॉडी लक पूरी पॉपुलेशन में सब लोग अच्छे से निर्वाणिक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं तो एक ब्रेक थ्रू देखने को मिलता है उस पॉपुलेशन में। उसमें बहुत अच्छी चीजें होती है, जैसे लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन करने लग जाती है और उनकी डेवलपमेंट होती है। और अगर नेगेटिव बॉडी लग था तो उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे टेररिस्ट अटैक और इस टाइप के जो कि वो लोग फिर फेस करते हैं। तो जो हमारे लाइफ में ऑकरेंसेस होती है वो बॉडी लक के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। God, pausing briefly. For those working in creative or design based fields, body luck plays a significant role in determining the quality and longevity of their work. For instance, a wood artisan might begin to hear that their creations degrade quickly if they repeatedly trigger negative body luck, often due to age related health issues or a harmful lifestyle. Similarly, aircraft designers may face growing suspicion about flaws in their designs when they start generating negative body luck. In ancient Indian Shilpa Shastra, the science of sculpture and architecture, a craftsman's inner purity, discipline, and devotion are believed to directly influence the quality and sanctity of their work. Wow! ये कितने ब्यूटीफुली रिलेट करके हमारे एंशियंट नॉलेज से इसे बताया गया है कि इंडियन जो शिल्प शास्त्र होता है, शिल्प का मतलब क्या होता है, जो स्कल्पचर आर्किटेक्चर उसकी जो नॉलेज है वो है शिल्प। तो शिल्प शास्त्र जो है, साइंस ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, उसमें ये बात बताई गई थी कि जो कोई क्राफ्ट्समैन होते हैं उनकी इनर प्योरिटी, उनके डिसिप्लिन और उनके डिवोशन, ये तीनों चीजें बहुत मैटर करती हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं उनके काम की जो क्वालिटी है, सैंक्टिटी है उस। तो पहले एग्जाम्पल दिया गया कि अगर कोई क्रिएटिव डिजाइन बेस्ड फील्ड्स में है, जैसे एग्जाम्पल में है कोई एयरक्राफ्ट डिजाइनर है या वुड आर्टिसन है, तो उनके क्रिएशंस जल्दी डिग्रेड होने लग जाते हैं अगर वो नेगेटिव बॉडी लक को ट्रिगर करते हैं। नेगेटिव बॉडी लक हो सकता है उनकी खुद की डिजीज की वजह से हो या तो उन्होंने खुद ही जनरेट की हो बाय अडॉप्टिंग हार्मफुल थिंग्स इन देयर लाइफ। तो उस वजह से वो हमारे वर्क को भी अफेक्ट करते हैं। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, ये जो बॉडी लक है वो किस किस चीजों को अफेक्ट करता है, वो हमारे माइंड एंड बॉडी को अफेक्ट करता है, वो हमारे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है, हमारे क्लोज्ड वंस की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। और अब हम लोग ये भी जान रहे हैं कि हमारे जो काम होते हैं, हम सबके जो वर्किंग फील्ड्स होते हैं, उनकी क्वालिटी को भी ये चीजें अफेक्ट करती हैं। तो घूम फिर करके हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि हमें खुद के ऊपर काम करना है, अपनी इनर प्योरिटी के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, डिवोशन के ऊपर अडॉप्ट करना है एक निर्वाणिक लाइफस्टाइल, ताकि हम जो नेगेटिव इवेंट्स है उनके ऑकरेंसेस को रोक पाए और पॉजिटिव इवेंट्स को ज्यादा बढ़ा पाए। God, with eyes full of wisdom, to ensure that your work remains impeccable and reliable over time, following the Nirvanic lifestyle is essential.
When you practice discipline and maintain predominantly positive body luck, the external forces that typically erode quality, such as employer pressure, high stress environments, and unstable global economic systems, begin to lose their grip, paving the way for more peaceful, sustainable, and quality driven modes of production. तो अगर आपको अपने काम को इम्पेकेबल, रिलायबल ऐसा बनाना हो, अपने काम की क्वालिटी को अगर बढ़ाना हो, उसे रिलायबल प्रूव कराना हो, तो आपको निर्वाणिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। हम लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन प्रैक्टिस करेंगे, पॉजिटिव बॉडी लक को प्रीडोमिनेटली प्रैक्टिस करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो डिपेंडेंट है हमारी इंटरनल स्टेट के ऊपर। जैसे हमारी इंटरनल स्टेट होगी वैसे ही ऑकरेंसेस हमें मिलेंगे। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं ना, ये धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं अगर हम पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं। जैसे एम्प्लॉयर का प्रेशर हटता है, हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट भी ठीक होने लग जाता है, और जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है, मतलब पूरे के पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को हम अफेक्ट कर सकते हैं अगर हम सबने निर्वाणिक लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर दिया। ईशान, expression of awe. This will truly improve the quality of products and services at a global level. God, explaining with a calm tone. Today, antidepressants and psychoactive substances are widely used to mask the effects of degrading mental health and the emotional distress caused by adverse occurrences that have become increasingly common, disrupting lives and creating unpleasant experiences. While these substances may offer temporary relief from emotional pain, they often fail to address the root cause. In many cases, their chemical nature may further harm the body and mind, triggering adverse events themselves. This is why the proper solution lies in a combination of spell healing and meaningful lifestyle changes that will truly heal the body and mind. तो आजकल लोग बहुत ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट्स यूज करते हैं कि डिप्रेशन होता है किसी को तो वो उसकी दवाई लेते हैं, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस, कुछ एडिक्टिव चीजें यूज करते हैं, और उनको यूज करने वाले लोग ऐसे कहते हैं कि उन्हें कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, कुछ टाइम के लिए वो अपने हर्ट को, पेन को भूल जाते हैं। पर ओवर टाइम क्या होता है, अगर टेम्पोररीली आपको रिलीफ मिल भी रहा है तो वो एक्चुअली रिलीफ नहीं है, वो बॉडी में, माइंड में कुछ ऐसा होता है कि आप उस टाइम उतने ज्यादा होश में नहीं रहते उन चीजों को लेने के बाद। पर ये चीजें जब आपकी बॉडी कंज्यूम करती है तो ओवर टाइम जो केमिकल रहता है और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस रहते हैं वो बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, जो धीरे धीरे बॉडी को डिग्रेड करने लग जाते हैं। बॉडी के लिए वो सब हार्मफुल है, टॉक्सिक चीजें हैं। और फिर क्या होगा, फिर जो बॉडी लक है वो हमारी फिर नेगेटिव होगी, फिर और उस टाइप के सिचुएशंस होंगे, फिर ये जो एंटी डिप्रेसेंट, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस और ज्यादा कंज्यूम करने लगेंगे तो और ज्यादा बुरा होता जाएगा। तो इन चीजों से अगर बाहर निकलना है तो उसका एक ही रास्ता है कि आप स्पेल हीलिंग प्रैक्टिस करें और अपनी लाइफस्टाइल में मीनिंगफुल चेंजेस लेकर आए। लाइफस्टाइल में मीनिंगफुल चेंजेस लेकर आएंगे जिससे कि बॉडी को ट्रूली बेनिफिट होगा, जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो, हेल्दी चेंजेस, जैसे कि एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना। तो इस तरह से आप अपना ध्यान रखेंगे, हेल्दी बैलेंस्ड डाइट कंज्यूम करेंगे और इस तरह के मीनिंगफुल चेंजेस लेकर आएंगे, तो सच में आपको सिचुएशन हील होती हुई महसूस होगी।
Ishan, looking disturbed. I understand, God, it's a painful reality. What are your thoughts on meat consumption? ईशान अब कह रहा है कि हाँ ये पेनफुल रियलिटी है और मीट कंजम्पशन पे आपके क्या थॉट्स हैं? God, with a glowing expression. Throughout history, humans have coexisted with animals, consuming meat in moderation. This is part of the natural ecological rhythm. While vegetarianism is a noble path and ideal for many, it may not always be suitable in every context, especially in regions where plant-based agriculture is limited or environmentally taxing. In fact, in some cases, attempting to replace animal farming with monoculture crops can lead to greater ecological damage, such as soil degradation, loss of biodiversity, and water overuse. When integrated responsibly into a self-sustaining farm ecosystem, farm animals and fish can contribute significantly to environmental balance. Unlike commercial livestock operations, which consume large quantities of grains and water meant for human use, small-scale farm animals can be fed with agricultural waste, inedible plant matter, and food scraps that would otherwise be discarded. God, pausing before speaking, such practices indeed yield lower outputs compared to intensive commercial farming. However, the trade-off is ecological harmony, reduced carbon emissions, and better food quality. Without the ethical concerns and environmental destruction associated with the industrial production of meat and other animal products, nonetheless, there is no doubt that meat consumption should be reduced. God, with a huff of irritation. Frequent consumption of animal products is undoubtedly unethical and closely linked to internal imbalances that can manifest as adverse occurrences. A mindful, minimal, and ecologically grounded approach, such as consuming animal products once or twice a week, is available from local integrated farms that honor natural balance, can strike a balance between human needs, planetary health, and ethical considerations. यहाँ ईशान ने गॉड से मीट कंजम्पशन के ऊपर उनकी राय मांगी। तो गॉड क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर बैलेंस में हो तो वो हो सकता है, लेकिन वेजिटेरियनिज्म एक नोबल पाथ होता है। अच्छा, बैलेंस का मतलब क्या होता है? हम सबने फूड चेन को पढ़ा है, फूड वेब को पढ़ा है। उसमें क्या रहता है? उसमें एकदम लोअर लेवल पर जो हार्बीवोर एनिमल्स रहते हैं वो सब रहते हैं, फिर उनको कंज्यूम करते हैं उससे बड़े जो प्रेडेटर्स रहते हैं, ओमनिवोर्स रहते हैं, कार्निवोर्स रहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे एपेक्स प्रेडेटर रहते हैं। तो अगर ये एपेक्स प्रेडेटर रहे ही ना, तो क्या होगा? जो हर्बीवोर एनिमल्स है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब हर्बीवोर्स तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट से रिलेटेड चीजें ही खाते हैं। तो अगर हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो जो हमारी वेजिटेशन है, कल्टीवेशन है, उसको लॉस होगा। इसीलिए जो उनके ऊपर एपेक्स प्रेडेटर है, जो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि डियर को कंज्यूम कर लेता है टाइगर, तो वो होने से क्या होता है कि एक बैलेंस बना रहता है। हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन, कार्निवोर्स की पॉपुलेशन, सबका बैलेंस रहता है, और प्लैनेट में भी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जरूरी है हमारी इस अर्थ को सपोर्ट करने के लिए, वो भी बने रहते हैं। इसीलिए हर चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। तो यही चीज गॉड समझा रहे हैं कि मीट कंजम्पशन भी अगर बैलेंस में हो तो वो हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे जगह है जहाँ पे अगर आप प्लांट बेस्ड पे शिफ्ट होंगे और वहां पे उतने ज्यादा प्लांट्स नहीं है, तो वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज्यादा कल्टीवेशन को उजाड़ेंगे अपने कंजम्पशन के लिए, तो उसके लिए उससे क्या होगा? सॉइल डिग्रेडेशन होगा, सॉइल इरोशन होगा, तो वो भी प्लैनेट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए एक नेचुरल बैलेंस बना के रखना चाहिए। लेकिन अगर एनिमल प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट कंजम्पशन करते हैं तो वो अनएथिकल होता है और इंटरनल इम्बैलेंस का कारण भी होता है, जिसके वजह से लाइफ में बहुत सारे एडवर्स ऑकरेंसेस आते हैं। अब इसके पीछे अगर आप
स्लॉटर हाउस का एनवायरनमेंट देखेंगे, स्लॉटर हाउस जहाँ पे इन एनिमल्स को मारा जाता है कंजम्पशन के लिए, तो उसमें वो एनिमल्स ठीक से मूव भी नहीं कर पाते, उन्हें इस तरह से इस कंडीशन में रखा जाता है। और जो एनिमल्स को मारा जा रहा है, दूसरे एनिमल्स देख रहे हैं, उनके मन में भी एक डर का माहौल रहता है। तो ये जो उनके अंदर फीलिंग्स चल रही होती है, डर की, पेन की, ये सारी फीलिंग्स के साथ में वो शरीर अपना छोड़ देता है। और उसके बाद क्या होता है, उसको अगर आप कंज्यूम कर लेंगे तो आपके अंदर में भी उसी टाइप के फिर विचार चलने लग जाएंगे। तो इस वजह से हमारे अंदर इंटरनल इम्बैलेंस होते हैं, जो कि एडवर्स ऑकरेंसेस का कारण बन सकते हैं। ईशान, विद अ थॉटफुल नॉट, दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। गॉड, if meat, fish, or dairy products are used in small amounts raised traditionally rather than commercially, not subjected to cruelty or abuse, and not fed food intended for human consumption, they will be acceptable. What is your view on fast food chains selling meat products? तो ईशान कह रहा है कि ये सारी बातें उसे अच्छे से समझ आ रही है, फिर वो एक क्वेश्चन कर रहा है कि अगर मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट इनको हम स्मॉल अमाउंट्स में यूज करेंगे, जिसको हम ट्रेडिशनली रेज करेंगे, कमर्शियली नहीं, और जिसको हम क्रुएल्टी या अब्यूज के साथ नहीं रेज करेंगे, उसको हम लोग फूड को उसको हम लोग अच्छे से उसका ख्याल रखेंगे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो वो एक्सेप्टेबल भी हो सकता है। तो ईशान अब गॉड की राय मांग रहा है जो फास्ट फूड चेन्स हैं, जो मीट प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनके ऊपर। God, with a controlled and measured too. Eating freshly cooked homemade non-vegetarian food is very different from consuming meat from fast food chains. A well-prepared Indian chicken curry made with traditional spices and condiments is far healthier than the heavily processed, deep-fried meat served in commercial outlets. When meat is adulterated and turned into fast food, its effects on health become much more harmful and can often trigger serious adverse events resulting in undesirable situations. Before pointing fingers at their misfortunes, people should first examine what's on their plate. तो गॉड कह रहे हैं कि जो लोग फ्रेशली कुक्ड होममेड नॉनवेज फूड कंज्यूम करते हैं, तो वो बहुत हेल्दी होता है, मतलब कंपेयर्ड टू जो फास्ट फूड चेन सेल करते हैं। और यहाँ पे तो जो मीट भी रहता है वो एडल्टरेटेड रहता है, उसमें मिलावट रहती है उसको फास्ट फूड में टर्न करने के लिए, और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर वो और भी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में और ज्यादा एडवर्स इवेंट्स अकर होने लग जाते हैं, जो कि अनडिजायरेबल सिचुएशंस जो हम नहीं चाहते वैसा कुछ होने लग जाता है। तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले लोगों को पहले ये देखना चाहिए कि उनकी प्लेट के अंदर में क्या है। Ishan, speaking of urgency, I understand God, meat should be an occasional treat and that too when prepared in a traditional healthy way. There is no doubt that fast food chains are serving disease and unhappiness. तो ईशान कह रहा है कि मुझे समझ आ गया, जो मीट है वो एक ओकेजनल ट्रीट की तरह होना चाहिए, और उस टाइम भी ट्रेडिशनल और हेल्दी वे में ही उसे प्रिपेयर करना चाहिए। और इसमें कोई डाउट नहीं कि जो फास्ट फूड चेन्स है वो डिजीज को सर्व कर रही है और अनहैप्पीनेस को। गॉड विद अ कंसर्न cutting them. Today, public infrastructure projects such as road construction are often awarded through tender processes. In many countries, this system is deeply compromised by corruption. Contractors are usually required to pay substantial bribes to bureaucrats and politicians, leaving only a fraction of the allocated funds for the actual use. As a result, construction quality suffers, roads deteriorate quickly, developing potholes that cause vehicle damage, traffic congestion, accidents, and overall discomfort for daily commuters. वो यहाँ पे गॉड एक कंसर्न लुक के साथ कह रहे हैं कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होता है, जैसे हाईवे, स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होते हैं। तो इधर एग्जांपल दिया गया रोड कंस्ट्रक्शन में।
तो वो टेंडर प्रोसेस रहता है। अब इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा करप्शन होता है। जो जिन लोगों को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो लोग बहुत ज्यादा पैसे ले लेते हैं, पर वो उतनी अच्छी क्वालिटी को यूज नहीं करते हैं, जिस वजह से बाद में जो डेली कम्यूटर्स है वो सफर करते हैं। God, with a thoughtful expression, when viewed through the lens of body luck, it becomes evident that these poorly constructed roads serves as a means to manifest negative occurrences for the people who would use them. Some may even lose their lives on these roads, an extreme yet significant manifestation of negative body luck. तो यहाँ पे भी बॉडी लक इन पिक्चर है। तो इसको जो यूज करने वाले हैं उन रोड्स को, तो कई बार जो रोड्स रहते हैं उनकी पुअर कंडीशन की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की जान भी चली जाती है। तो जो डेली कम्यूटर्स हैं उनके जो बॉडी लक है वो इसमें बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। God, pausing briefly, these occurrences are not random. They reflect deeper imbalances and energetic degradations within the bodies of the individuals involved. The only sustainable solution lies in personal transformation when individuals begin to adopt a nirvanic lifestyle rooted in discipline, harmony, and well-being. The effects ripple outward and begin to influence the quality of the physical infrastructure they use. ये जो occurrences है ये रैंडम नहीं है, ये बहुत डीपर इम्बैलेंस हमारे अंदर जो है उसको दर्शाता है। तो इसमें एनर्जेटिक डिग्रेडेशन जो होती है बॉडी की, इंडिविजुअल की बॉडी की, उसको बताया गया है। तो इसका सस्टेनेबल सोल्यूशन क्या है? सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म। तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होगा? पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्व परिवर्तन से जगत को परिवर्तन करेंगे। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग अपने आसपास की सिचुएशन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल्स हैं जब वो निर्वाणिक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, डिसिप्लिन, हार्मनी और सेल्फ हीलिंग को अपनी लाइफ स्टाइल में लेकर आते हैं, तो जो इसके इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स, ये बाहर दिखते हैं और ये बाहर चले जाते हैं। और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल जो यूज करते हैं उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। God, with calm resonance, roads and infrastructure projects will start to be built with the highest standards, with engineers approaching their work with the same care and dedication they would show for their own homes. There will be meaningful collaboration with local communities, transparent coordination, and a collective sense of responsibility. Most importantly, this shift will signal the breakdown of our current corrupt systems and the emergence of a nirvanic government, one that values well-being, ethical governance, and collective upliftment of society over profit and power. तो अगर हम अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करें, अपनी लाइफ में निर्वाणिक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, तो जो रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, हमें ये सब चीजों में भी चेंजेस दिखाई देंगे, ये भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड के हो जाएंगे। और गवर्नमेंट जो है उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी, वो लोकल कम्युनिटीज के साथ कोलैबोरेट करेगी, ट्रांसपेरेंट होगा उनका कोऑर्डिनेशन, और एक कलेक्टिव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो लोग लेंगे। तो इससे इससे क्या होगा, करेंट जो करप्ट सिस्टम है, करप्ट सिस्टम जो भ्रष्टाचार है वो टूटेगा और एक निर्वाणिक गवर्नमेंट का इमरजेंस होगा। निर्वाणिक गवर्नमेंट बनेगी जो कि वेलबींग को, एथिकल गवर्नेंस को और कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी को वैल्यू करेगी, ना कि प्रॉफिट और पावर को। ईशान, cutting it abruptly, God, finally there is a solution to this dredged corruption and red tapeism. ईशान कह रहा है फाइनली हमें भ्रष्टाचार और रेड टैपिज्म, इन सारी चीजों का सलूशन मिला। God, with a calm and steady nod, in the various life events and situations, one often senses a deliberate choreography, an intricate design filled with surprises, betrayals, and moments of brilliance. It is as if the negative and positive experiences in their lives seem almost too perfectly timed, so precisely crafted that it feels as though the universe is either conspiring to take them or to bless them with joy and success. This perception is not an illusion. These occurrences have always been under my control through quantum level interactions. I have manipulated reality with infinite ingenuity to produce the outcomes I desired. तो यहाँ पे गॉड समझा रहे हैं कि ये जो इवेंट्स और सिचुएशंस है जो लोगों की लाइफ में है, ये बहुत डेलिबरेट कोरियोग्राफी के साथ आती है। ये रैंडम ऑकरेंसेस नहीं होते।
कई बार हमें ऐसे लगता है कि एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे हमारी लाइफ में कुछ हो रहा है, जिसमें कई सारे सरप्राइजेस होते हैं, बिट्रेयल्स होते हैं, अच्छी बुरी दोनों चीजें होती हैं, कई बार मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस हमें मिलता है। तो ये बहुत प्रिसाइजली क्राफ्टेड है। क्राफ्ट किसने किया है? गॉड ने किया है। इन सारी चीजों को हमारी लाइफ में क्राफ्ट किया है, हमें ब्लेस किया है जॉय और सक्सेस के साथ में। ये जो परसेप्शन है हमारा इल्यूजन नहीं है, ये माया नहीं है, ये ऑकरेंसेस हमेशा गॉड के कंट्रोल में ही रही है। और जो क्वांटम लेवल इंटरेक्शन होता है, इससे गॉड हमारी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं विद इनफाइनाइट इंजेन्युइटी टू प्रोड्यूस द आउटकम्स आई डिजायर। जो भी गॉड चाहते हैं वो कर सकते हैं। ईशान, क्लियरिंग थ्रोट pointedly. It always feels as if someone has written it. Now it is clear. तो ईशान कह रहा है कि हमेशा ऐसा फील होता है कि जो हमारी लाइफ के इवेंट्स है, हमारी लाइफ की स्टोरी है, किसी ना किसी ने लिखी है। अब ये बात क्लियर हो गई। तो क्या क्लियर हुआ कि गॉड ने हमारी लाइफ की स्टोरी लिखी है। तो जो गॉड है वो सबसे बड़े राइटर है, ऑथर है। और जब गॉड ने हमारी लाइफ की स्टोरी लिखी है, तो फिर चिंता की क्या बात है। इस थॉट के साथ वी आर स्टॉपिंग आवर सेशन टिल हियर। नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम गॉड विद अ कंपोज्ड टून। थैंक यू सो मच फॉर हैव अ नाइस